دیوبندی ایک تھے. اللہ کے ساتھ پھر ہو گئے دیوبندی سے مولانا کے بعد دو. اب اس میں ایک فرقہ آ گیا توحیدی. توحیدی آپ نے دیکھا ہے سنا ہے؟ جاؤ بیاری میں جاؤ آپ کو وہاں ملے ایک توحیدی مسجد عبد الرحمان بن عوف پیٹرول پمپ مالک کے پاس نئی مسجد بنی ہے اہل حدیث کی توحیدی ہے. اور وہ توحیدی ہے جو اسی بات میں کر رہا ہوں. یہ اصل وہی توحیدی ہے جو عبد الوہاب نجدی کے زمانے کا 11ویں صدی کی بات کر رہا ہوں. بات دور نکل رہی ہے آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں. میں آپ کو نالج رکھیں پوچھ چاہیے آؤ میرے پاس میں آپ کو کتابیں دکھاؤں. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آج کے پورے 100 سال کئی ہزاروں سال پیچھے کے گزرے گئے. آپ کی فتاوی حدیث عربی میں آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے پیدا ہوئے یہ. پھر ان سے اہل حدیث سے پھر دیوبندی سے یہ توحیدی بنے. توحیدی سے اسلامی جماعت بنی. تبلیغی جماعت بنی. ان سے فرقہ واحد پیدا ہو گئی. اتنے 4-5 گروہ کی جماعت بنا دی کہ مسلمان کہیں نہ کہیں پھنس جائے مگر ان کا عقیدہ سبھی کا ایک ہے. سمجھ گئے؟ سبھی کہتے ہیں نبی نہیں جانتا, نبی مر گیا, نبی نہیں سنتا. پتہ نہیں کیا نبی کا علم شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. کیا سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟ یہ بات دعویٰ سے کر رہا ہوں, یہ نہیں سنا رہا ہوں. یہ بات دعویٰ سے کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے, اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. ارے یہ کافر مغرور شیطان ہے جس پہ رات دن لعنت برستی رہی, وہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. شیطان کو حاضر و ناظر ہر جگہ مانتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے. کیا ان کی برائی آپ کو بتاؤں؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے پاں پیٹ پہ گالیاں نہیں دی ہیں ان لوگوں کا سب کچھ کہا ہے. باقی سب کچھ میں اب دکھا سکتا ہوں. نہیں تو آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں, تقویۃ الایمان, چھوٹی کتاب ہے, بازار میں ملتی ہے, اردو تصویر ہو گئی, جا کر لے لو. عبد الوہاب نجدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. توبہ کر جاؤ گے. آپ تو کہیں گے مسلمان ہی نہیں یہ لوگ ایک نبی کی بےدبی کی. اور بڑی بات یہ ہے ہر جب اللہ کریم کا نام لیتے ہیں تو اللہ کریم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جل جلالہ کہتے ہیں, جل مجدہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعظیم کا ملا دیتے ہیں. اس شخص نے پوری کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان, جہاں بھی اللہ کا نام ہے اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب سب سے بڑی گستاخی. اور یہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا خدا کتنا جھوٹ بولتا ہے وہ بتائیں. اور یہ فتح میں جتنے خدا جھوٹ بول سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان ساری عیبوں سے نبی اللہ کی ذات تو بے عیبی ہے مگر ہم تو مصطفیٰ کو بے عیب سمجھتے ہیں. ہم حضور کو بے عیب سمجھتے ہیں. ہمارا دیگر صحابہ میں خطا ہوئی مگر سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام خطا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں خطا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بے عیب بنایا. تو میں عرض کر رہا تھا بات دور نکل گئی. تو ان میں سے بھی دو یا اہل حدیث بنے تو انہوں نے سب سے پہلے 2 نتیجے
बताओ, आप तो पैदा नहीं थे, कलमा चल रहा है। खाली आप दादा से, अगर आपका नाना मौजूद है तो पूछो उससे, वो भी कहेगा बेटा जब जल्ला उठाते हैं तो कहते हैं कलमे शहादत, सभी कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हो गया इन लोगों को? भीगी बिल्ली की तरह देखते रहे मौलवी को कि क्या कह रहा है। अरे हमारी जिंदगी कलमे से गुजरी है और कलमा ही मुसलमान का एक रिजल्ट है। अब बताओ, अगर उसी करने से भी मना कर दिया जाए तो न पढ़ो ना जाए है। कम से कम वो नाकाम होते बेवकूफ को अकल होना चाहिए कि भाई मौलवी साहब ये बात नहीं सुनी है, सुनाओ कहाँ लिखा है। इतना तो कह दो, इतना तो कह दो। तो इतने करने से काबिल नहीं रहे हो, ऐसे बस बीमार पड़ी खत्म। ये नहीं देखा बीमार पड़ने वाला क्या है, काजर ये काफिर है, मुसलमान है, फिर ये मुशरिक है, क्या है। अब आप खुद अंदाजा करें, अगर वो कलमा पढ़ने से मना कर रहा है तो बताओ कलमा पढ़ने से मना कर रहा है कितना मुसलमान हो। इतनी बड़ी जुर्रत हजारों के सामने कहता है कलमा नहीं पढ़ो, और किसमें ये तकवा नहीं है, किसी में जरूरत नहीं है, खड़े होकर कह दे मौलवी साहब ये बात कहाँ लिखी है, कलमा नहीं पढ़ो, मुझे ला के दो। जवाब मैं दूंगा ना, आपसे ला के दो, उसको कोई लिख के दो मुझे। हमें ऐसी वाली बात नहीं मानते, लिख कर तो कहाँ लिखा है। ऐसे नए नए फिक्रे पैदा हुए हैं। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल सच फरमाया था, ऐसी कौम पैदा होगी, ऐसी बयानी करेगी, ऐसी नमाज़ें पढ़ेगी कि तुम्हारी नमाज इनके सामने कुछ नहीं होगी, और ऐसे मसाइल सुनेंगे तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं सुने होंगे। मगर ये उनका मकाम क्या होगा, उनकी हालत क्या होगी। कुरान तो यही पढ़ेंगे, मगर ला यक़रअल कुरान यक़रअुल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान को पढ़ेंगे मगर हालत से नीचे नहीं उतरेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, और ये लोग दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे कमान के तीर निकल जाता है। आओ हदीस मैं दिखा दूं, अमल करो, मुसलमान बनो, सुन्नियत का जज्बा रखो, गैरत रखो दीन की। तुम्हारे बाप का जनाजा हो रहा है, दुआ नहीं है। तुम्हारे बाप का जनाजा हो रहा है, तुम्हारी माँ का जनाजा हो रहा है, कलमा नहीं है। और फिर क्या रह गया है? मुसलमानों के बहुत सर को जज्बा रखो, बोलने की शक्ल को नहीं देखो, कितनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है, कितना बड़ा जुब्बा पहना हुआ है, कितनी छोटी सलवार पहनी हुई है, ये नहीं देखो। ये देखो कि वो कहता क्या है, बकता क्या है। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा अंधेर, इतनी बड़ी जुर्म कि मुसलमानों से कहता है कलमा नहीं पढ़ो, जायज नहीं है। और किसी ने कहा तक नहीं कि तुम क्यों कह रहे हो, कहाँ लिखा है। जैसे तो बोलो उसे चपट जाते हो और उसे लोगों के पीछे चल जाते हो, मगर पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पूछो कहाँ लिखा है। मुसलमानों उसे दीन की गैरत रखो, दीन का जज्बा रखो, दीन का एहसास करो, हम मुसलमान हैं। अब ये भी आगे आके कलमा नहीं पढ़ो, जायज नहीं है, छोड़ दो, कलमा छोड़ दो। हमारे इस्लाम में हनफी मज़हब अहले सुन्नत में तो मय्यत निकल के चलो तो ला इलाहा इल्लल्लाह करते जाओ। ये तलकीन मय्यत को तलकीन होती है। और एक काफिर और मुअतज़िला बद मज़हब है, उनका अकीदा है कि कलमा नहीं पढ़ो। अल्लामा शामी को पढ़ो, मैंने मतलब देख लिया। अल्लामा शामी ने ये लिखा है कि ये मुअतज़िली थे। मुअतज़िला एक मज़हब है, कम्युनिस्ट समझो, कम्युनिज्म है, उनका मतलब है कि कलमा नहीं पढ़ो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ये भी नहीं करो, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो मय्यत को पढ़ो, ये भी नहीं करो। ये अहले सुन्नत का मतलब नहीं है, मुअतज़िलों का मतलब है, और ये मुसलमान नहीं है। और आप खुद उस पढ़ने का अंदाजा लगाओ, वो कितने तरह का मुसलमान है कि कहता कलमा नहीं पढ़ो। शायद वो लोग कभी कलमा पढ़ते ही नहीं होंगे, मय्यत के बहाने कलमा पढ़ लेते होंगे। तो कभी तो जनाजा नहीं पढ़ते, इतने वक्त पढ़ते जनाजा हो रहा था वो बाहर खड़े होते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो बाहर खड़े होते हैं, जो जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं होते। अगर मेरे दोस्तों, जनाजा पढ़ने या नमाज पढ़ने के काबिल के दो, नाकाबिल होने के दो तरीके हैं। या तो बच्चा है
दिया सके। तो ये तो देखो कि तुम्हारे बाप दादा परदादा परदादा सरदादा सारे कलमा पढ़ते आए हैं, और आज का मौलवी 40 साल की उम्र का कहता जायज नहीं। और कभी देवबंधु ने ये नहीं कहा, ये जरूर कहा है कि मैयत के आगे जो कलमा पढ़ते जायज नहीं, ये कहा है, मगर ये कि कुत्ता के बहन कलमा पढ़ते ही ना जायज है, कभी नहीं कहा। मगर उसके जवाब भी हमारे पास हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ जवाब है, सारे उलमा की किताबें भरी हुई है, जितनी मुफ्ती की किताबें फतरे जिनके सामने पड़ी है ना, सारी किताबों के अंदर सब बातें लिखी हुई है। मतलब कहना चाहिए कि मुसलमानों दीन का चलता रखो, तेरी माँ का जनाजा हुआ है, तो ही नहीं जरूरी है तो है क्या है, तो ही नहीं उठाओ देते। बाकी रहा मसला दफन का, तो गधे की तरह दफन का तो क्या फर्क पड़ता है? गधे की तरह दफन का तो नाम की नमाज पढ़ लिया आपने, दुआ है ही नहीं, और दुआ बखूल इबादत। मेरे दोस्तों बस अब यही रह गया है, सिर्फ दफन करना, बाकी दुआ भी खत्म, दुर्ग भी खत्म, सब खत्म, सब खत्म। अब मुझे बताओ, हम अपने इलाके में खुसूसी तौर पर अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, या क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, नेकवार भी हैं, सारे मजहब इधर है। हिंदू का अगर कोई मरता है तो वो भी राम राम करके चलते, अब देखो चला देखो, मैंने तहकीक की है, वो राम राम करके जनाजे को ले जाते हैं। नेकवारों का मरता है तो वो भी बोलते जाते हैं, जिक्र का होता है तो वो भी चलते जाते हैं, और मुसलमान खामोश है। क्या पता है मुसलमान का जनाजा जा रहा है, यहूदी का जा रहा है, ईसाई का जा रहा है, हिंदू का जा रहा है, कुछ तो निशानी बताओ। अरे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाओ और पता चले कि मुसलमान का जनाजा है। वो बात है, दुनिया की बातें करते जा रहे हो, तुम्हें मरना नहीं है, अपनी मौत याद नहीं है, तुम करो कि मुस्तफा करीम फरमान लकी को मौत तुम अपने उर्दू को तरकीब करो। तो यही तरकीब है, यही तरकीब है। इसे जरूरी जरूर अजान देने का इनकार किया था, मैंने यहाँ आपको इस तरकीब के मुताबिक 15 मिनट आपसे तकरीर की, वो बड़ी शाम थी। इन्होंने टाइम किया था, हम आ रहे हैं, अजान कहाँ लिखा है, और आए नहीं। मतलब कहने का ये है, अजान भी जायज है, दुआ भी जायज है, नाथानी करो जायज है, कलमा पढ़ो जायज है, कुरान पढ़ो जायज है, कुछ भी करो जायज है, कोई हद नहीं। कहाँ लिखा है कि जायज नहीं? और आप मेरे दोस्तों, मुझे अफसोस से करना पड़ता है, आप इतने गए गुजरे हो, अगर आप रुपए में से अगर 2 आने अगर कम करते हो, चीज पढ़ते हो, 2 आने कम है, 2 आने कम है, वो चीज पढ़ते हो, वो नबी का नबी है, कम आपका बिल्कुल मना करा, किसी कुछ नहीं कहा। कैसे मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? मेरे दोस्तों, सिर्फ दुनियादार न बनो, दीनदार बनो। दुनिया इधर रह जाएगी, दीन आपका आगे ले जाएगा। दीन आगे आपको काम है, इतना कहाँ है टाइम लगेगा। फिक्र फीकस इतना है, 300 बार लिखा हुआ है, इतना देवबंदी वहाबी को ही नहीं दो, अरे पत्नी पर मदद को नहीं देना है, और फितरा गरीब को तो मिस्त्री को यहाँ मदारस में जमा करा दो। एक काम की फजत बहुत बड़ी है। बस ये समझो कि बैठे बैठे तुम्हें हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। ठीक है, हदीस से बहुत है, कई बार मैंने बयान भी की है। और ये ऐसा अमल है कि बंदा अल्लाह के घर का मेहमान बनता है, अल्लाह के ऊपर खुसूसी नजर होती है। अल्लाह जिस पर नजर रखे तो क्या समझते हो? अल्लाह की नजर में बंदा उसके घर का मेहमान है। एक आपने जवानों की या बच्चों की होती है मसाजिद में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी ताकीद करें कि जिंदगी में एक बात तो करें। भाई ये तो सभी को अकल है, मगर अब नौजवान में जज्बा है, बच्चे को नहीं। 15 साल के कोई बच्चा पहले नहीं बैठेगा, मैंने खाली साहब को पहले ही कह रखा है, पान खोर गुटखा खोर को नहीं रखना है, और 15 साल से कम है उसको नहीं रखना है। लिहाजा ऐसे बच्चों को रखो जो कुरान की तिलावत करे, पढ़े, मसाइल समझें, जो बुनियाद तरबियत दी जाती है, सीखने की मसाइल की तरफ समझें, तब फिर का उसका तकद्दुस और मस्जिद का तकद्दुस समझें। मैं
ضروری تھا. آج کل یہ نئے نئے فکرے پیدا ہو رہے ہیں. سنیو، یوں کر کرتے حیرت سے نہیں دیکھو. میں نے جو کہا ہے